continue with hardness only because abhi it's not yet over. Uska thoda sa part is yet pending. So do let me know when you can see the screen. Yes, ma'am, it's visible. It's visible. So okay. अभी तक हमने किया कि how to quantify hardness using complexometric titration, then how to quantify temporary and permanent hardness. ये something I guess please correct me if I'm wrong. I guess हमने temporary permanent hardness भी discuss नहीं किया है, right? I guess as in how to quantify it using EDTA method. Have we discussed? Because I'm taking another section also. So I guess it's done in CSF, but I think it's not done here as numerical. I guess it's not done. So okay, let's start. Yeah, please confirm. Anybody, please confirm. I don't think it's done. It's not done, ना? Okay. So let's start with then. सबसे पहले temporary and permanent hardness, how to quantify. So अभी तक जो हमने titration किया, there we saw that using EDTA and EBT, like using EDTA as titrant and EBT as indicator and a suitable buffer, which can be ammonium or otherwise any buffer which maintains pH from 9 to 10.5, we can eventually quantify total hardness of the solution in terms of calcium carbonate. Now, if in case we, because in the very beginning, I told you that if in case you want to quantify temporary, permanent, or calcium magnesium hardness, all you can do using this complexometric titration. Just the limitation is that it quantifies only calcium and magnesium ions because EDTA it form complex with only bivalent metal cations. So it does not quantify trivalent metal cations which are actually causing hardness. So this is the limitation. But now we are done with how to quantify total hardness using these two reagents. One is EDTA and EBT. And now I'll tell you how will you proceed with the titration if in case you are given a sample and then you have to tell what temporary and permanent hardness. So very clearly, जो भी last time हमने numerical किया था, for example, let's proceed with a numerical. Okay, I am sharing the whiteboard. अगर किसी को भी अपनी वैल्यूज याद हैं क्योंकि आप लोगों की वैल्यूज अलग थी न्यूमेरिकल में एंड इफ इन केस आप उसी के साथ कंटिन्यू कर प्लीज लेट मी जो हमने प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल किया होगा इफ इन केस यू रिमेंबर दोज वैल्यू CS 9 और 10 अलग अलग वैल्यूज थी बट इफ इन केस यू रिमेंबर मैम 14 ml वॉल्यूम yes 0.9 got it 0.9 molarity था 0.09 I guess okay okay thank you beta so किसी एक ग्रुप में ये वैल्यूज थी which was say a water sample say it is 14 ml of water sample when titrated against इसका molarity हमें नहीं पता when titrated against 0.09 molar EDTA it gave its end point what was the value जो आपने titrate किया होगा I guess 0.4 Yes, ma'am. yeah so it gave end point at 0.4 ml EDTA so this is how you would have calculated अब सबको ये सब समझ आ रहा है इसलिए मैं पूरी statement नहीं लिख रही हूँ so 14 ml water sample when titrated against 0.09 molar EDTA it gave its end point with EBT indicator obviously it gave its end point at 0.4 ml of EDTA so you calculated total hardness M is equal to 0.09 multiply 0.4 divided by 14 and then hardness is equal to M into 10 to the power 5 ppm. Now if in case इसी numerical में you have to calculate temporary and permanent hardness, how will you do this? The statement will definitely be like this. The same sample when boiled, cooled, for example, the same sample, say 14 ml, same amount of sample when boiled, cooled and filtered and then again titrated यानी कि इस आपने 14 ml को ही बॉयल किया कूल किया
filter किया and the filtrate is titrated against same EDTA. It can be same, मैं दोनों चीजें बता दूंगी. It can be same EDTA. तो same EDTA का मतलब है 0.09 molar EDTA. Titrated against same EDTA, gave it send point at, it definitely cannot be more than 0.4 because 0.4 ml is corresponding to total hardness. So definitely temporary and permanent hardness या तो बराबर हो सकती है. For example, the total hardness is because of temporary hardness, or it can be either because of completely permanent hardness. So the value can be barabar if in case it is completely because of permanent hardness, or it can be less. More तो नहीं हो सकती. So for example, when the same volume of sample is titrated, boiled, cooled, and filtered, and the filtrate is titrated against same EDTA, same standard solution of EDTA, it gave it its end point at say 0.1 ml. So now you need to calculate temporary and permanent hardness. So how will you do it? Very clearly, अब आपके पास पूरा values हैं. Again, you have 14 ml. It is boiled, cooled. हाँ, eventually one thing is there. When it is boiled and cooled, तो some water loss definitely is there. Evaporation loss is there. अगर आपने उसको closed system में नहीं किया है. If it is open system, जो generally open system होता है, तो in that case evaporation loss is there. Since this is titration and the volume is very much important, so eventually what you will do is, you, for example, you started with 14 ml of water sample. I'm telling this specifically because ये mistake exam में होती है numerical में. So you are taking 14 ml water sample, you are boiling, cooling and filtering, and then eventually you are titrating. So अगर आपने इसको boil cool किया और open system में definitely कुछ water loss हुआ, मान लीजिए it is 13 ml now. So what you need to do, you need to make up the solution to 14 ml against using distilled water. So distilled water, yeah, you can say double distilled water is completely free from any ion. So it is much clear that it is not containing, this double distilled water is not containing any calcium, magnesium. So the point is, but since you have started with 14 ml water sample, you have to make that volume to 14 ml only, because accordingly you will quantify the value. So the statement will be like this. The same sample, water sample is boiled, cooled. When it is said that same water sample or same set of water sample, तो इसका मतलब 14 ml की ही बात हो रही है. या फिर दूसरी तरफ हम ये बोल सकते हैं कि say another 100 ml water sample. So in that case, you will take accordingly कि 100 ml है. So for example, same set of water sample is boiled, cooled, and the filtrate is made up to 14 ml, and then through using double distilled water, and then the titration is done, and eventually using same EDTA, standard solution of EDTA, and eventually it gave end point at 0.1 ml. So calculate temporary and permanent. Now what will you do? Temporary hardness has been removed. Now you'll quantify permanent hardness, which will be 14 ml, since you made up the volume to 14 ml. अगर आपने नहीं किया, then I'll again tell कि क्या होगा. So 14 ml multiply by molarity. Molarity has now changed. Molarity का मतलब concentration of ions. So ions boil cool करने के बाद change हो गए हैं, क्योंकि आपकी total hardness causing ions have been removed. So do not think कि हमने जो यहाँ molarity निकाली थी मैम, वही molarity यहाँ पर place कर देंगे. This molarity is definitely different, क्योंकि molarity is because of these ions, और ions change हो गए हैं, मतलब कम हो गए हैं, या शायद उतने ही रहे हो, but change हो गए हैं क्योंकि value change आ रही है. Is titrated against same EDTA 0.09 multiply by 0.1, and then molarity you will calculate 0.09 multiply by 0.1 divided by 14, and then hardness is will be multiplied by 10 to the power 5. Now if in case the statement is like this, कि say 100 ml of water sample is titrated, is boiled, cooled and filtered and whatever, and the sample is made up to 100 ml, and out of this say 20 ml is taken. So आपको कोई मतलब नहीं है कि 100 ml था या 14 ml था, आपको बस इससे मतलब है कि आपने eventually जो भी sample है उसका कितना लिया. So if in case for example 14 ml of water sample is boiled, cooled, filtered and filtrate is made up to again say 14 ml, and उसमें से 5 ml sample लिया, तो आपको इस 14 ml कहानी से कोई मतलब ही नहीं है. या अगर इसको मेड भी नहीं किया, मेड अप टू 14 ml भी नहीं किया, देन ऑल्सो आपको इस कहानी से कोई मतलब नहीं है उस केस में. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप लिए इवेंचुअली कितना वॉल्यूम उठाया. तो बॉयल कूल करने के बाद 5 ml of the water sample is taken and titrated against same set of EDTA 0.09,
एंड देन जो भी वैल्यू आई, मान लीजिए 0.05 ml ऑफ EDTA वेंट और टाइट्रेशन हुआ और एंड पॉइंट आया, तो अब आप मोलैरिटी अकॉर्डिंगली निकालेंगे, हार्डनेस अकॉर्डिंगली निकालेंगे, एंड दिस विल गिव यू परमानेंट हार्डनेस क्योंकि टेम्परेरी हैज बीन रिमूव्ड, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट द डिफरेंस विल गिव यू परमानेंट, सॉरी, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस विल गिव यू टेम्परेरी हार्डनेस। तो ऐसे आप टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे। यहाँ कुछ भी बफर रिमेन्स सेम, इंडिकेटर रिमेन्स सेम, और टाइट्रेंट तो डेफिनेटली रिमेन्स सेम। बफर, अमोनियम बफर or any buffer which can maintain pH 9 to 10.5. Indicator will be EBT only क्योंकि it has all its affinity toward calcium and magnesium both, and hardness, temporary and permanent hardness is caused by both kind of ions, calcium and magnesium both. So you need to take indicator जो specifically किसी एक के साथ complex नहीं बनाता, तो it will remain same, EBT will remain same, buffer remains same because EBT want that condition, and then आपका जो titrant है that is EDTA, it will remain same. What will differ is you need to boil, cool, and then using filtrate you need to get it titrated. Only this will change, and this will give you permanent hardness. Any doubt, please ask. एक लास्ट स्टेटमेंट अगेन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने ml को बॉईल किया, कूल किया, आपको इसलिए इस चीज से फर्क पड़ता है क्योंकि आपने कितना वॉल्यूम लिया। व्हाट मैटर्स इज कितना वॉल्यूम लिया, क्योंकि अगर मैं ये स्टेटमेंट जस्ट अगेन अगेन करेक्टिंग इट, कि अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलती हूँ कि मैंने 14 ml वाटर लिया, उसको बॉईल कूल किया और फिल्टर किया, और मैंने मेकअप नहीं किया और मैंने उसी वाटर सैंपल से टाइट्रेट किया, नाउ द पॉइंट इज कि मैं यहाँ पर एक लूप होल छोड़ रही हूँ कि मैंने कितने वॉल्यूम से टाइट्रेट किया, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था 14 ml से, लेकिन मैंने टाइट्रेट कितने से किया, क्योंकि वॉल्यूम लॉस है। तो इस केस में आई नीड टू प्लेस दैट वैल्यू कि मैंने इसको वापस मेकअप किया 14 ml तक, या फिर आई विल गिव कि एवापोरेशन लॉस की वजह से नाउ द वॉल्यूम इज 12 ml। So if the volume is 12 ml और आप 12 ml से टाइट्रेट कर रहे हैं, you will do the calculation according to 12 ml। तो ये क्लियरली आपको दिया होगा कि आपने टाइट्रेट कितने वॉल्यूम से किया है। और अगर 14 ml से स्टार्ट किया यूजिंग क्लोज सिस्टम, तो वेरी क्लियरली नो वॉल्यूम लॉस इज देयर। अगर आपने उस पर लिड लगा दिया है तो कोई एवापोरेशन लॉस नहीं है, डेफिनेटली कोई मास लॉस नहीं है। तो इन दैट केस 14 ml इज द केस। तो ओपन सिस्टम के केस में आपको सिर्फ इससे मतलब है आपने टाइट्रेट कितने वॉल्यूम से किया। इट कैन बी एनी वॉल्यूम, इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट, बट इट कैन बी जो भी वॉल्यूम है उससे आपको कैलकुलेशन करना है, वहां पर कंफ्यूज मत होइए। Any question if in case you want to ask, or shall I proceed? Okay, so in that case I'll proceed with calcium and magnesium hardness. So now this was about temporary and permanent hardness, where you just did boiling and cooling, and then again titration was done using all the same reagent. But if in case you want to quantify calcium and magnesium hardness, which actually would have been your objective in lab, अगर आप lab में आते तो you would have done 2 sets of titration or maybe 4 also, कि अगर आपको temporary, permanent and all type of titration, all type of hardness you would have to test, then in that case तो आपको total 5 set of titration करना पड़ जाता, 4 set of titration सॉरी। बट यहाँ पर फिलहाल अभी आपको जो लैब में करना होता था दैट वाज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्डनेस। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो हमको ये बात पता है कि फॉर टोटल हार्डनेस हमने, कोई भी प्लीज रिपीट विद मी और रेदर गाइड मी। टोटल हार्डनेस के लिए हमने बफर क्या लिया, व्हाट वाज द बफर, एनीबॉडी कैन आंसर? अमोनियम बफर। व्हाई? Ammonia to maintain pH around 9.5 to 10. या 9 to 10.5, ठीक है। हमने राइट हमने इंडिकेटर क्या लिया? EBT। व्हाई? व्हाई? To indicate the endpoint. Oh, that is okay, but why ABT only? It makes Because yes, it yes, yes.
Yes, please. Ma'am, because it works most efficiently between that pH. Okay, what does efficiency mean? It's just Ma'am, about the pH. No, no, no. Okay, okay. It's rather, Helps in creating yes, it helps in ma'am free ions of calcium or magnesiums, etc. creating मैं free ions. No, free no, no, ions no, no. मैं फ्री बनाए थे No. ना, ईबीटी से अब रिएक्शन करते हैं तो पहले तो वो उससे फिर एक पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है. नो 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 प्लीज एक बार लेक्चर दोबारा देखिएगा आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ नो 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 दिस इज नॉट द आंसर एनीबॉडी एल्स it does not EBT does not set metal ions free no these see bacha these are ionic salts you need to understand salts means they are ionic in nature they are not covalent the moment you put them in the solution they are otherwise also ionic they are in the form of ions only so EBT is not setting them free it's just that ki jo free calcium magnesium EBT EDTA is going in the solution. So it is firstly making complex with free ions and then eventually complex ions and breaking it and setting it free and giving it color. No, no, no. This is not the point. Why EBT? Ma'am, because EBT has chelating properties. Because no, no. I'm asking about EBT indicator. E- EBT. Why EBT indicator has been selected? अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले. Okay, I'll tell you. Okay. मेटल आयन के साथ मैम वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसके On metal ion. ईडीटीए के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो जो हमारे ईबीटी नहीं नहीं उसके जो फ्री अभी आयंस बचते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं जो हमें एंड पॉइंट देते हैं. वो तो ठीक है बट द पॉइंट इज कि ईबीटी ही इंडिकेटर मतलब मेरा मतलब है देखिए आपने मेरे को जो आंसर दिए हैं वो ये है कि मैम ये इस कंडीशन में काम करता है नहीं 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 आप मैं आपको आंसर्स के हिसाब से सब कुछ बता देती हूँ फर्स्ट आंसर वॉज कि मैम क्योंकि हमने बफर लिया है और ईबीटी इस कंडीशन में काम करता है सॉरी हमने ईबीटी लिया है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक बफर बफर के हिसाब से हम इंडिकेटर सेलेक्ट नहीं कर रहे आप बोल रहे हैं मैम ईडीटीए के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना देता है ईडीटीए के साथ ईबीटी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता ईडीटीए के साथ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है ईबीटी इज एन इंडिकेटर जो अपना कलर दे रहा है कॉम्प्लेक्स का कलर डोंट म्यूट मी म्यूट योरसेल्फ So EBT is indicator, EBT has been used as indicator and accordingly buffer has been selected. Please correct yourself. EBT has been used as indicator because it formed complex with both calcium and magnesium. So it formed complex with both bivalent metal cations. Very important point. EBT indicator हमने इसलिए लिया because it forms complex with calcium and magnesium both not only with calcium not only with magnesium but both kind of ions तो हमें जब टोटल हार्डनेस निकालनी है we cannot say कि हमें कैल्शियम वाले से चलेगा मान लो अगर टोटल हार्डनेस is just because of magnesium ions then तो EBT will not work तो व्हाट वी वांट इज कि हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो दोनों की तरफ एफिनिटी रखता हो दोनों आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए एंड ईबीटी इज वन ऑफ दोज इंडिकेटर इट इज दैट इंडिकेटर व्हिच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम मैग्नीशियम ईबीटी पीएच 9 से 10.5 रेंज में काम करता है इसलिए हमने अमोनियम बफर लिया ईडीटीए ईडीटीए टाइट्रेंट क्यों लिया टाइट्रेंट वाज ईडीटीए बिकॉज ईडीटीए बेटर complex बनाता है with metal cations compared to EBT and this is the principle. So EDTA जो भी आपने आंसर दिया because it is hexadentate, it is chelating agent is welcome but then EDTA जो भी है that and secondly EDTA also form complex at basic pH. तो उसको भी acidic pH नहीं चाहिए and this is pretty much basic pH. तो हमने इंडिकेटर ऐसा सेलेक्ट किया जो बेसिक पीएच में काम करे क्योंकि हमारा पूरा प्रिंसिपल उस पर करेगा लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज that indicator should be specific toward calcium and magnesium बराबर affinity से ऐसा नहीं कि कैल्शियम छूटा या मैग्नीशियम छूटा then it will not work so that's how it gives total hardness now when we talk about calcium and magnesium hardness तो problem क्या आएगी if in case we take same indicator we cannot in any case quantify
कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सेपरेटली, वी कैन नॉट। इसी कंडीशन से तो सब कुछ बराबर है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लिए। नाउ वी नीड टू make the condition very distinct so that either calcium or magnesium can be quantified. So what will the condition be in case of, say, to quantify rather, दोनों लिख रही हूँ, calcium and magnesium hardness. What will you do? Now the conditions will be buffer, indicator, titrant. Titrant will be same, EDTA, कोई change नहीं आएगा. Buffer, I'll talk. सबसे पहले indicator. So we need to select an indicator which is either specific toward calcium or magnesium, दोनों की तरफ नहीं. So that is calcon. Calcon again अपना color is blue. When it forms complex with calcium, the color of complex is pink. जैसे EBT का complex का color was wine red and itself it was blue. Similarly, calcon itself is blue in free form, and when it forms complex with calcium, it is pink colored. Calcon does not form complex with magnesium. It does not form any kind of complex with, right? So it has no affinity toward magnesium. अभी तक कोई doubt है? Because now I'm going to throw a question. If in case you have doubt, please ask. हमने टोटल हार्डनेस क्वांटिफाई करना था, हमने इंडिकेटर ऐसा लिया जो दोनों आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, फिर हमने टाइट्रेंट लिया जो बेटर कॉम्प्लेक्स बना सकता है आयंस के साथ कंपेयर टू इंडिकेटर, और हमने अकॉर्डिंगली बफर कंडीशन सेट की। अब हमने कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस क्वांटिफाई करनी है, तो इसका मतलब कोई एक हमें स्पेसिफिकली पहले निकालना पड़ेगा और दूसरे को अलग रखना पड़ेगा। तो वी सेलेक्टेड इंडिकेटर which is calcon, which makes complex with only calcium. It does not have any affinity toward magnesium, and then free form में its color is blue and in complex form its color is pink. Now any question या कोई डाउट आ रहा है कि अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ, now if in case I take buffer, ammonium buffer which is maintaining 9 to 10.5 pH, okay, if the conditions are okay, now मैंने सेम बफर लिया, इंडिकेटर चेंज किया, टाइट्रेंट सेम लिया, only indicator is different, which is not at all forming any complex with magnesium. Now I titrated, indicator went into the solution, formed complex with calcium, the solution turned pink. Now I'm titrating against EDTA. Now you tell me, when I titrate, will it give me calcium hardness only specifically? Anybody? और कोई डाउट आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? Or will it give me total hardness even now? Calcon is specific toward calcium only. It's forming complex with only calcium. And in solution, calcium, magnesium both are lying. Now I need to quantify only calcium hardness. I'm done with the total hardness. So shall it quantify now titration? Shall it give me total hardness value or calcium hardness value? Anybody? या कुछ भी लग रहा है कि मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? You can ask. See, either you guys are okay with this कि हाँ मैडम ठीक है, बढ़िया है, हो जाएगा, कैल्शियम के साथ बाइंड कर रहा है, हो जाएगा, और यू गाइस थिंक नहीं मैडम टोटल आएगा, कुछ तो आंसर दो यार। हम समझ नहीं आया, दोबारा बता दो एक बार। ओह गॉड भाई साहब, क्या है और पता भी नहीं। कोई और भी जिसको समझ नहीं आया भाई? ओके, हाँ, यू वांट टू नहीं से आया। समथिंग और यू वांट टू आस्क? नहीं आया, सुनो दोबारा सुनो, यस दोबारा मैम, एक बार समझाइए दो। दोबारा समझाती हूँ और फिर क्वेश्चन पूछूंगी और फिर आपको मेरे को आंसर देना। आंसर नहीं, पहले मैं जब समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रही हूँ तो क्या आंसर समझ आएगा? लास्ट से करा देना, उसमें थोड़े एक लास्ट से ही, लास्ट से ही, लास्ट से ही, अबाउट कैल्कन ओनली। अब मुझे निकालना है स्पेसिफिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस। मैंने टोटल हार्डनेस निकाल ली, मुझे टेम्परेरी परमानेंट भी मैंने कर लिया, कोई डाउट नहीं था आपको। अब मुझे निकालना है कैल्शियम या मैग्नीशियम की हार्डनेस, किसी एक की आ गई, मैं टोटल में से सबट्रैक्ट करूंगी, मेरी दूसरे की आ जाएगी। जब मुझे किसी एक आयन की स्पेसिफिकली निकालनी है तो उसके लिए मैंने कंडीशंस चेंज की। अब मेरी 3 कंडीशंस है सॉल्यूशन में। पहला तो है, rather चलो 4 चीजें गई हैं,
सॉल्यूशन में वाटर सैंपल, उस वाटर सैंपल को तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बॉइलिंग कूलिंग तो काम कर नहीं रहा। तो और लैब स्केल पे मैं इसको कुछ मैं इस पे ट्रीटमेंट करना ऑब्वियसली आई डू नॉट एक्सपेक्ट। तो अभी मेरे पास वाटर सैंपल है और वाटर सैंपल को मैंने एज सच रखा। आई दैट इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट गोइंग टू टच वाटर सैंपल, जैसे पहला लिया था वैसे ही लेंगे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एज सच वाटर सैंपल इज टेकन। सेकेंड वॉज बफर, उसके बाद आपने बफर डाला था। बफर, नाउ आई टेक इट सेम, मैंने अमोनियम बफर लिया जो 9 से 10.5 pH बना देता है, मैंने डाल दिया। अब मैंने इंडिकेटर लिया जो ईबीटी नहीं है, क्योंकि ईबीटी की कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों के साथ एफिनिटी है। तो मैंने एक स्पेसिफिक इंडिकेटर लिया विच इज कैल्कन। कैल्कन ओनली कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स का पिंक कलर है और ब्लू कलर है, तो ये मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाता। फोर्थ, मैंने टाइट्रेट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट ईडीटीए। ईडीटीए भी चेंज नहीं होगा क्योंकि और कोई टाइट्रेंट है ही नहीं जो ये प्रिंसिपल पे काम करे। तो very clearly water sample will remain as such, EDTA will remain as such. Now what I am asking you is, अगर मैं इंडिकेटर चेंज कर देती हूँ कैल्कन जो सिर्फ कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और मैंने बफर यही रखा। नाउ कंसीडर, इवन ये भी डाउट मत लाइए कि मैम कैल्कन इस पीएच पे काम नहीं करता, कंसीडर की करता है। चलिए कंसीडर की कैल्कन इस पीएच पे काम करता है, हो गया, पीएच कंडीशन सेट हो गया, कैल्कन इंडिकेटर डाला आपने, कैल्कन ने सिर्फ कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, राइट। आपने टाइट्रेट किया, आपका एंड पॉइंट जो आया वो एंड पॉइंट विल इट कॉरेस्पॉन्ड टू कैल्शियम हार्डनेस ओनली और टोटल हार्डनेस? दिस इज माय क्वेश्चन। क्योंकि मैंने पहले मैग्नीशियम हार्डनेस, कैल्शियम हार्डनेस, टोटल हार्डनेस इसलिए बोला था क्योंकि ईबीटी ने दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था, कैल्कन ने या सिर्फ कैल्शियम के साथ बनाया, मैग्नीशियम के साथ बनाया ही नहीं। कैल्शियम हार्डनेस। तो हाँ, दिस इज माय क्वेश्चन, विल इट गिव ओनली कैल्शियम हार्डनेस और विल इट गिव टोटल हार्डनेस? मैग्नीशियम हार्डनेस तो मतलब ही नहीं। कैल्शियम हार्डनेस। एनीबॉडी एल्स? Anybody else? When you think about all those 3 steps now, you will understand the answer. Those 3 steps कि एक्चुअली क्या हो रहा था वहां पर। आपने ईबीटी डाला, ईबीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर आपने ईडीटीए डाला, उसने 3 आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, एंड इवेंचुअली ईडीटी ने मेटल कॉम्प्लेक्स तोड़े। यहाँ भी यही होगा, आप सबसे पहले कैल्कन डालेंगे, वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर आप ईडीटीए डालेंगे, वो फ्री आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंड इवेंचुअली ईडीटीए कैल्शियम कैल्कन कॉम्प्लेक्स तोड़ेगा। नाउ यू आंसर मी, will the hardness correspond to total hardness or calcium hardness only? अभी भी समझ नहीं आया तो अगेन यू कैन आस्क। I got one answer, that is calcium hardness, it will give calcium। कोई ऐसा है जिसको लग रहा नहीं मैम calcium hardness नहीं total hardness होगी? I know this is tricky, बट मैग्नीशियम के बने ही नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस तो ब्रेक नहीं हो पाएंगे ईडीटीए से, सो सिर्फ कैल्शियम का ही रहेगा। okay, so 2 कैल्शियम की answers for हार्डनेस है। calcium, 2 answers at least, please guys tell me your names, दोनों tell me your name, see don't worry, it's not about negative marking or something या कि गलत है सही है। नाम हार्दिक। कार्तिक, नाम अक्षिता। अक्षिता है, हार्दिक। जस्ट फॉर माय रिकॉर्ड कि कौन कौन एक्चुअली क्लास में आंसर्स दे रहा है, जस्ट दैट। और कोई बेटा, इट कैन बी रॉन्ग राइट वट एवर, बट एटलीस्ट योर ओपिनियन। ओके, what if I say no, it will give total hardness? Now who can answer? it it will definitely give total hardness. Now please इस स्टेटमेंट का आंसर दो, इट विल गिव, दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, इट विल गिव टोटल हार्डनेस। हु कैन थिंक ऑफ दिस कि ये टोटल हार्डनेस ही देगा मैम अभी भी?
despite the fact it is forming only complex with calcium, but magnesium is present there. Please mind it. I'm not saying magnesium is not lying there. It will give total. कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना ईडीटीए, किसके साथ? EDTA भी तो है, वो भी बना ईडीटीए मेरे को आवाज ही नहीं आ पा रही है, बट आई गॉट द आंसर. कोई लड़की भी कुछ बोल रही थी, प्लीज बेटा. यस मैम. यस मैम वो EDTA भी तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा मैग्नीशियम के साथ. ओके. कोई और? मैम वो मैग्नीशियम के साथ तो ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और हमारे पास जो कैल्कन है वो सिर्फ कैल्शियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रेक कर सकता है. बना सक. ओके, आई गॉट द आंसर. राइट, बिल्कुल सही. तो गाइस योर नेम. बचा रहेगा वो मैग्नीशियम के साथ वाला. नेम्स आप दोनों के. मैम जय. जय तो ये तो याद ही हो गया. 260. जय 260. तुम तो याद ही हो गए मुझे. और प्रेरणा. प्रेरणा. यस. ओके. तो अब सुनो बेटा ध्यान से. So what exactly is happening? If you remember those 3 steps, सबसे पहले क्या हो रहा था आपका? सबसे पहले आपने हार्ड वाटर सैंपल लिया, आपने उसमें ईबीटी डाला, और वो ईबीटी कॉम्प्लेक्स बना रहा था कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों से. ईबीटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यही हो रहा था. उसके बाद आपने इस सॉल्यूशन को, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स भी है और फ्री कैल्शियम भी है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों है, आपने इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट किया ईडीटीए से. और उसके बाद ये टाइट्रेट तब तक होता चला गया, एंड पॉइंट नहीं आया तब तक टाइट्रेट होता चला गया, जब तक जितने भी फ्री कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. एंड पॉइंट कब आना शुरू होगा? जब आपका ये ईडीटीए सॉल्यूशन में जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के अपना कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करेगा. एंड पॉइंट तब आएगा. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है. Everything is same. अगर solution में magnesium present है and calcon is not able to form complex with magnesium, how does that matter? Even now solution में it contains abundance of free calcium yet abundance of free magnesium. अगर कैल्शियम के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स कैल्कन ने बना भी लिए, इसका मतलब से इट वाज 1000 कैल्शियम एंड 1000 मैग्नीशियम एंड 10 कैल्कन के साथ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं. इवेंचुअली इट इज 990 कैल्शियम एंड 1000 मैग्नीशियम. तो एंड पॉइंट कब आएगा? जब आपका ये 1000 प्लस 990 हैज फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए, और उसके बाद जो 10 जो बचे हैं कैल्शियम के साथ कैल्कन कॉम्प्लेक्स, Ca2 प्लस कैल्कन कॉम्प्लेक्स, ये ब्रेक करेगा ईडीटीए और फाइनली कैल्कन को फ्री करेगा. और पॉइंट आएगा, ये सेम वैल्यू पर आएगा जो अगर आप ईबीटी यूज करते तब आता. द हार्डनेस विल अगेन बी टोटल हार्डनेस, क्योंकि फाइनली एंड पॉइंट 2000 मोल्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम जब क्वांटिफाई हो चुके हैं तभी आ रहा है. तो इंडिकेटर अकेला चेंज करने से विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. कुछ कंफ्यूजन है? प्लीज आस्क. इंडिकेटर का काम है सिर्फ कलर ट्रांजिशन देना, क्वांटिफाई करना ईडीटीए का काम है. तो ईडीटीए को मतलब है कि सॉल्यूशन में कितने कैल्शियम मैग्नीशियम पड़े हैं, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो. कैल्कन के केस में सिर्फ जो कैल्शियम है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मैग्नीशियम सारा फ्री पड़ा है. हाउ डज दैट मैटर? ईबीटी के केस में कुछ कैल्शियम और कुछ मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, बाकी सारा कैल्शियम मैग्नीशियम फ्री पड़ा है. तो अगर मैं केस नो इट वुड हैव बीन 5 कैल्शियम मान लीजिए एंड 5 मैग्नीशियम. इवेंचुअली वो 995 इसको क्वांटिफाई करने के बाद 10 बॉन्ड्स तोड़ता है एंड इवेंचुअली 2000 मोल्स के बाद ही एंड पॉइंट आता जो अभी आ रहा है. तो इट डज नॉट एट ऑल मैटर. लेकिन आपको कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस निकालनी है, तो इसका मतलब कुछ और कंडीशन भी वेरी करेंगी. तो व्हाट इज दैट? अमोनियम बफर to maintain pH 9 to 10.5 will not work, not only because of the fact that calcon is actually not able to work in this condition. This is not the major fact. No, calcon actually जो इस condition पे काम करता है that is approximately 12 pH. तो 12 pH के लिए ये suitable buffer नहीं है. तो अगर मैं इस बफर को चेंज कर लूं, फॉर एग्जाम्पल आई यूज डाइथाइलामीन बफर which maintains pH to 12.
तो कैल्कन उस पीएच पर काम कर सकता है, वेल एंड गुड, बट देन अगेन द कंडीशंस रिमेन सेम. So the application or the use of calcin is not only because of the fact that it is selective toward calcium only. तो अगर कोई भी इंडिकेटर इस पर्टिकुलर पीएच रेंज में यानी कि 9 से 10.5 पीएच पर कैल्शियम की तरफ सेलेक्टिव होता भी, इट वुड नॉट हैव हेल्प, जो हमने देखा. तो कैल्कन इज फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए, और कैल्कन किस पीएच रेंज में काम करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 पीएच. और 12 पीएच में क्या होता है, मैग्नीशियम they get precipitated in the form of magnesium hydroxide. जितना भी सॉल्यूशन में मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल. तो इनसॉल्युबल का मतलब है कि नाउ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वेयर एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी बन रहा है, इट इज नॉट इनसॉल्युबल, इट इज स्टिल द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. पार्ट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है still calcium is in the form of Ca2 plus and dispersed in the solution only, suspended in solution only, you can quantify it. magnesium solution से अलग हो गया, आप उसको फिल्टर नहीं भी करेंगे, then also it's not a part of solution. now since magnesium solution से अलग ही हो गया, it's not a part of solution, अब जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आपका एंड पॉइंट सिर्फ कैल्शियम के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है, क्योंकि जब आप ईडीटीए डाल रहे हैं तो उसके पास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ओनली कैल्शियम एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम नहीं करता, क्योंकि वो इनसॉल्युबल हो गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया. इवन यू डू नॉट, even if you do not filter it, it has been precipitated out. Precipitated out मतलब separate, not a part of solution, not causing any kind of hardness, not exist, does not exist in the solution only. So now there are two reasons why you use calcin. First, because it selectively forms complex with calcium, but only this will not work. प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका कुछ भी मैग्नीशियम यहाँ पर प्रेजेंट है भी, तो भी ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा. तो मतलब कॉम्प्लेक्स बना के भी उसको सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं रखेगा, सॉल्यूशन में डिस्पर्स स्टेट में नहीं रखेगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट वर्क एट 12 पीएच अप्रोक्सीमेटली, और 12 पीएच पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इतना पीएच इतना ज्यादा आपने कर दिया कि हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, ऑप्शन नहीं है, आपने भर दिया हाइड्रोक्साइड से सॉल्यूशन को. तो पॉइंट इज कि इस कंडीशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, इवेंचुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इजीली गेट प्रेसिपिटेटेड आउट. इफ यू रिमेंबर when we talked about the hardness, we did discuss कि जो मैग्नीशियम है that get precipitated out in the form of magnesium hydroxide, with calcium get precipitated out in the form of calcium carbonate, ऑल कैल्शियम. तो इवेंचुअली जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और उसकी वजह से उसको क्वांटिफाई आप कर ही नहीं सकते. नाउ व्हेन यू ऐड ईडीटीए, इट इज ओनली कैचिंग और कैप्चरिंग कैल्शियम. एंड पॉइंट कब आएगा, जब आपका कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा. तो अगर आपके 1000 कैल्शियम थे तो इसका मतलब कि, और 1000 मैग्नीशियम आर नो मोर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, रिमूव हो गए सॉल्यूशन से, only 1000 calcium has been left. Now when you use calcin as indicator, it will take say 10 calcium ions, 10 moles of calcium ions, 10 calcium ion को पकड़ा, ईडीटी आपने डाला, वो 990 को क्वांटिफाई करेगा, और एंड पॉइंट कब देगा, जब वो आखिरी जो 10 है वो भी आपके टाइट्रेट हो चुके हैं. दिस इज हाउ इट वर्क. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. Any doubt? So basically you are taking a combination of calcin indicator and diethylamine buffer, then only it will help you. Otherwise अगर आप ऐसा कोई इंडिकेटर लेते हैं जो pH 9 10.5 पे काम करेगा, then दोनों आयन सस्पेंडेड सॉल्यूशन में टोटल हार्डनेस ही निकलने वाली है. प्लीज आस्क. So all clear? Either say yes or no, na? Yes, ma'am. Done. Okay. If in case you want to ask something, go ahead. In the meanwhile, I'm taking your attendance. टू 13. कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है बाय द वे? 46. 213. 14. Present, ma'am. 15. Present, ma'am. 16. Ma'am. 17. Present, 17. ma'am.
18, Ma'am. 19, आदित्य, देवांग, 20, Present, ma'am. 21, अर्पित, Present, ma'am. 22, अनमोल, Present, ma'am. 23, हार्दिक, हार्दिक Present, is ma'am. तन्मय, 24, Present, ma'am. प्रेरणा, 25 is present, हिमांशु, 26, Present, ma'am. प्रणव, 27, Present, ma'am. निपुण, 28, Present, ma'am. गौरव, 29, Present, ma'am. विपिन, 30, Present, ma'am. तुषार, 31, Present, कार्तिक, 32 is present, Present, ma'am. अक्षिता is present, you answered, प्रयाग, 34, present, ma'am. प्रियांशु, 35, Present, ma'am. श्रेया, 36, श्रेया, दारिल, 37, Present, ma'am. दिया, 38, दिया, हृदयांश, 39, Present, ma'am. 40, सिद्धांत, Present, ma'am. अवतार, 41, 42, भावना, 43, गौतम, Present, ma'am. दीपक, 44, Present, ma'am. कुणाल, 45, Present, ma'am. ऋषित, 46, Present, ma'am. हरित, 47, Present, ma'am. 48, ऋषभ, Present, ma'am. 50, मानिक, Present, ma'am. 51, वेदित, Present, ma'am. विशलाक्षी, 52, Present, ma'am. वंशिका, 53, शिवांश, Present. 54, okay. Present, शिवांश, ma'am. 50, ऋषिका, 56, Present, ma'am. Ma'am. Present, ma'am. करण, 57, Present, ma'am. आदित्य, 58, Yes, ma'am. जसलीन, 59, Present, ma'am. 60, जय, प्रेजेंट, सिद्धार्थ, 61, 61, सिद्धार्थ, चिराग, 62, Present, ma'am. ओके। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है तो बता दीजिए रोल नंबर्स। 242 प्रेजेंट, 19 प्रेजेंट, 13 प्रेजेंट, 42, 19, 13, 19 present, 13 present, and 42. 42 is present. Guys, Shreya, 236, 238 दिया, अवतार 241, सिद्धार्थ 261। अगर ये प्रेजेंट है बता दीजिए भाई। 261 present, ma'am. ओके, सिद्धार्थ प्रेजेंट। श्रेया 236, दिया 238, अवतार 241, 236, 238, 241. Okay, please ask if you have any doubt. No doubt. Okay, so I'll be sharing जितना भी रिकॉर्डिंग है क्लासेस की ऑन LMS ओनली, नहीं नॉट ऑन LMS, मे बी लेट्स सी ऑन टीम्स यू ऑलरेडी हैव। किसी को एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से डाउनलोड करने में या देखने में कि लेक्चर्स की प्रेजेंटेशन का रिकॉर्डिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, वहाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लेक्चर का रिकॉर्डिंग। तो किसी को प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्डिंग ढूंढने में? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so okay, either I'll send it to Teams only to you guys or through WhatsApp, right? जितनी भी रिकॉर्डिंग आज तक हुई है, और मे बी I'll share a folder जिसमें सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, ठीक है? Excuse me, Yes, ma'am. ma'am. Yes, please. Ma'am,